How are you all doing? How is the Sunday going? By far. Come on, tell me, what did you guys do today? How was it? Fun? Hectic? You were studying? Or did you take a break? What's up? Ma'am, I was preparing for my school exams. Okay, what grade are you in? 12th? 11th. Okay, you're in 11th, Abhi. Very nice. What about the others? What were you guys doing? You guys tell me yours and I'll tell you mine then. Alright, guys, then if you're not willing to interact, we'll then just move with the lecture. So today we are going to continue with our constitutional course that we were doing in the previous chapter. Can somebody brief for me what we studied in the previous class? बिल्कुल दो lines में बस. I'm not going to re-explain anything. So just in 2 lines, just let me know what did we do in the last lecture. Preamble and the fundamental rights. Exactly. So we did fundamental rights until Article 15. So guys, what was Article 15 about? Prohibition of discrimination. All right. What about Article 14? We studied two concepts in Article 14. Can any of you name that? What was it? And Equality and two types of Equal equality. protection of law. Equal, yes, absolutely. All right, then let me share my screen with you. And also, guys, I'll be asking you thode questions. I have some examples prepared. I'll be asking you questions. Please interact in this section. In this session, it's next to useless if you guys don't interact. You're just sitting there ideal. I don't even know if you're listening or not. Your mics or your cameras are not on. So just try to be interactive in the class. All right. See yes, if ma'am. the screen is visible, just give me a thumbs up and we'll begin. Yes, ma'am, it's visible. Yes. All right, great. So today we're going to study about Article 16 to 19, which are also a part of fundamental rights. So Article 16 is somewhat similar to Article 15 only, with certain differences. All right. आर्टिकल 15 टॉक्ड अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि आप कहीं भी किसी भी लोअर कास्ट को, सो एज वी कॉल देम, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप विमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कोई भी चीज करने से. आर्टिकल 16 टेल्स यू कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे एक कीवर्ड है, जस्ट टेक नोट ऑफ दिस, इट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके. अगर से कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है, I'll say AZB Legal. This is a very famous law firm. It's a tier 1 law firm in India. So when you guys get into good NLUs, they're going to be coming for your day zero for your placements. ठीक है. अगर AZB Legal आज कहता है कि we are not going to hire women or we're not going to hire people from XYZ castes, you cannot sue them for violation of your fundamental right under Article 16. ठीक है. लेकिन अगर से यूपीएससी कहता है कि हम हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी भी औरत को बैठने नहीं देंगे, देन यू कैन स्यू दिस. या वो कहते हैं कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल हटा देंगे और हम किसी भी SC ST या OBC कैटेगरी के मेंबर को यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठने ही नहीं देंगे, देन यू कैन स्यू यूपीएससी बिकॉज इट इज अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सोर्स. ठीक है. अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज से देखें, इफ यू गाइज डोंट नो व्हाट अ बेयर एक्ट इज, Bare Act is the bare language of the Constitution, bare language of laws. When you get into college, you'll have to buy Bare Acts. उसमें क्या जो actual original language लिखी होती है ना, which is somewhat complex compared to how we speak in normal life, वो होती है Bare Act में. All right. So Article 16 के कुछ clauses है. ठीक है. जैसे ये लिखा हुआ है Article 16,
ये होता है उसका क्लॉज 1। इसमें 2-4 क्लॉजेस और है जो इररेलेवेंट क्लॉजेस है, आई डिड नॉट इंक्लूड दोज। ये सब क्लैट के पर्सपेक्टिव से थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी होते रहते हैं, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। Article 16(1). How do you say this? Article 16, Clause 1. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. ठीक है, इसमें हमारे keywords क्या है? Opportunity for all citizens. पहला keyword, appointment to any office under the state. Any office under the state. ठीक है, ये हमारा पहला कीवर्ड, ये हमारा दूसरा कीवर्ड। अब अगर कोई फॉरेनर आके हमें कहता है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो आके अगर हमें कह रहा है कि से XYZ PCU है, PSU इज बेसिकली पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, तो अगर वो लोग एक फॉरेनर को मना करें कि नहीं हम आपको यहाँ पे जॉब नहीं देंगे, नो मैटर हाउ क्वालिफाइड यू आर, so that foreigner who is not a citizen of India cannot approach the Supreme Court or the High Court or even the District Court ये कह के कि मेरा fundamental right violate हो रहा है। This right is only for the citizens and this is only for offices under the state। ठीक है, इसका इसी आर्टिकल का क्लॉज 2 कहता है कि अगेन नो सिटीजन shall on grounds only of, ठीक है, always remember when you are even reading legal के passages, मेक श्योर यू नोट द कीवर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही से तुम्हें बैराक दे देंगे, ठीक है, तुम्हें बैराक की लैंग्वेज दे दी एंड तुमने बस रैंडमली रीड कर दिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन, पहला कीवर्ड, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, decent, place of birth, place of residence or any of them be ineligible for or discriminated against in any respect of any employment under the state। यानी देखो somewhat the language is similar to article 15। ठीक है, पहले क्लॉज में क्या कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब जो अपॉर्चुनिटी एक जनरल कैटेगरी के इंसान को मिल रही है वही अपॉर्चुनिटी एक SC, ST, OBC, EWS, PWD कैंडिडेट को भी मिलेगी। ठीक है, उनसे कोई अपॉर्चुनिटी छीन नहीं सकता, जो अपॉर्चुनिटीज एक मर्द को मिल रही है वो एक औरत को भी मिलेगी। दैट इज व्हाट 16(1) सेज। 16(2) कहता है कि कोई भी सिटीजन, रिलीजन हो, रेस हो, जेंडर हो, कास्ट हो, डिसेंट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो या प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो, इन 6-7 क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट मांग सकता है, उसके पास इक्वल राइट्स है फॉर एम्प्लॉयमेंट इफ ही हैज द मेरिट, इफ ही हैज द स्किल्स, तो उसे कोई भी इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट करके एम्प्लॉयमेंट के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, however article 16(4) is an exception। Can note this down, this is an exception to the premise of the article as a whole। ठीक है, मतलब जो बेसिक आइडिया जिस पे ये आर्टिकल बना है उस पे ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, ये सब ठीक है कि हम रिलीजन, रेस वगैरह के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए और हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, ये सब सही है, लेकिन स्टेट के पास एक राइट है कि वो रिजर्वेशन कर सकता है अपॉइंटमेंट पोस्ट्स पे इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस व्हिच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हुआ था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन इंक्रीज हुआ था पिछले साल फॉर अ सर्टेन बैकवर्ड कैटेगरी इन बैकवर्ड कास्ट इन महाराष्ट्र, जो टिपिकल मराठी लोग होते हैं उनके लिए। दैट वाज अ राइट वेस्टेड टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 16(4) कि आप रिजर्वेशन ला सकते हो उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, क्योंकि हमें इक्विटी बना के रखनी होती है ना एज पर आर्टिकल 14। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का एक और पार्ट है, वो कहता है स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो। ये रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर SCs एंड STs इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, और वैसे ही आर्टिकल 14(b) कहता है reservation and promotions can exceed 50% ceiling temporarily backlog exists। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, एक केस था which is a very famous case जिसने 50% रिजर्वेशन की कैप पे सीलिंग लगा दी थी इंडिया में।
कि रिजर्वेशन जो है वो 50% क्राइटेरिया से आगे नहीं बढ़ना चाहिए. डू यू गाइस नो व्हाट दैट केस वाज? Yes, ma'am. Name Indra it. Sanghe versus Union of India, Absolutely. What year? 1992. Great. Can you tell me बिल्कुल brief में the facts of the case? So there was a 50% cap on reservations for OBC, SC, and ST in like education institutions and government jobs. ओके. देखो क्या हुआ था कि मंडल कमीशन जब निकला था ना, जो बैकवर्ड क्लासेस पे एक स्टडी निकाल रहा था, तो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन सजेस्ट किया ओबीसी के लिए. अब वहाँ पे जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, इवन ही वाज वेरी प्रो ऑन रिजर्वेशन, राइट? सो ही इशूड रिजर्वेशन के, हाँ उन्होंने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया कि ठीक है, आप 27% रिजर्वेशन इम्प्लाई कर सकते हो. और उस जमाने में वैसे भी 22.5% रिजर्वेशन था, तो अराउंड 50% रिजर्वेशन तक चला गया था. तो इसे इंदिरा साहनी और ऐसे जनरल कैटेगरी के यूथ ने चैलेंज किया था. तो तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि कभी भी 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है. लेकिन उसके बाद एक और सब क्लॉज अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया. उसमें ये था कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस जो है, ठीक है, दैट कैन एक्सीड 50% सीलिंग टेम्पररीली इफ द बैकलॉग एग्जिस्ट्स. ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? प्रमोशन में होगा रिजर्वेशन, 50% का कैप इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी टेम्पररीली के. ठीक है, एक बार के लिए इंक्रीज कर दो. इफ द पीपल हु हैव बीन प्रमोटेड बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, फिर हम उन्हें वापस डिमोट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आर्टिकल 16(4)(b) सेज. ठीक है, फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है कि दिस विल नॉट प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which requires an office to be held by a person of a particular religion or religious denominational institution. यानी से एक हिंदू ट्रस्ट है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है और जो इंडिया के सारे टेम्पल्स की प्रोटेक्शन करता है, उनको रिवाइव करता है, ऑल ऑफ दैट. एंड सो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस ट्रस्ट फंड का, वो ये है कि जो भी हेड कर रहा है, जो भी चेयरमैन होगा, वो सिर्फ हिंदू रिलीजन से होगा. तो ये आर्टिकल जो है ना, कोई भी दूसरे रिलीजन का इंसान जाके इसे चैलेंज नहीं कर सकता है कि ये ऐसे कैसे टेम्पल के रिवाइवल के लिए आपने सिर्फ हिंदूज को क्यों बिठा रखा है इस ट्रस्ट फंड में. ये डिस्क्रिमिनेशन है एज पर आर्टिकल 16 क्लॉज 2. आप ऐसा नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 क्लॉज 5, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऑफिस है गवर्नमेंट का जो एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान ही हेड कर सकता है एज पर लॉ, ठीक है, तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते. यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. कोई डाउट्स? No, ma'am. ये आर्टिकल 16 था. ओके, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस देन. So a private school refuses to hire someone based on their caste. What do you think will happen? Can the person who's being denied the employment go to the Supreme Court or the High Court for violation of his fundamental rights? No, ma'am. Why do you think so? No, Because under public because it institutions, is not a public office. We'll speak one by one. Go ahead. because in public institutions, if somebody discriminates on the basis of your caste, religion, gender, etc., you can go to the Supreme Court and sue the person. But if such a case occurs in a private institution, then you can't do the same. Okay, very good, very good. So a scheduled caste candidate claims promotion under Article 16(4)(a), and the state has evidence of inadequate representation. State कह रहा है कि हाँ इस फील्ड में इनका inadequate representation है, और एक scheduled caste का कैंडिडेट कहता है कि मुझे आर्टिकल 16(4)(a) के अंडर प्रमोशन दो. क्या वो ले सकता है ये प्रमोशन? What do you guys think? Ma'am, can you please repeat the question again? Yeah, sure. An SC candidate claims promotion under Article 16(4)(a),
एंड द स्टेट ऑल्सो हैज एविडेंस ऑफ इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कि हाँ इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये लोग इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है, और वहाँ पे एक शेड्यूल्ड कास्ट का कैंडिडेट है जो कि ऑब्वियसली उनकी उसकी कास्ट अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, तो वो प्रमोशन मांगता है अंडर आर्टिकल 16(4)(a) कि मैं इस कास्ट का हूँ इसीलिए मुझे प्रमोशन दे दीजिए, क्या उसे मिल जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, समझ आया क्यों मिल जाएगा? एवरीबडी एल्स, आई हैव ओनली 2 पीपल आंसरिंग हियर. Yes, ma'am, because Article 16(4) Clause A, it allows the state to make like you can ask for a promotion if you are like from a reserved category. All right, very good. Moving forward to the next article, this is Article 17. Article 17 talks about the abolition of untouchability. Okay, one of you open your mic and define what untouchability is. What Can do you I try? understand by untouchability? No, Ridhima, wait, we have other people as well. You're the only one who's been answering in my class. And ma'am, can I go with Yeah, please proceed. untouchability refers to if there is a person who is SC in a particular cafe or kahin pe bhi, and the person who are available there, they are saying he is SC, don't go to him, don't buy foods from him, or don't be with them. Like पहले के टाइम में it is called that अगर आप SC हैं तो आपका अगर छाया भी पड़ जाता था, they used to take bath. So these are the few examples of untouchability. Very good, Hem Prakash. Yes, very good. So basically, untouchability है ना, एक discriminatory practice है जो एंशियंट टाइम्स नहीं कह सकते, जब से वर्ण सिस्टम चालू हुआ तब से इंडिया में चली आ रही है. हमारे पास लोगों को उनके जॉब के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट किया जाता है इनटू वेरियस कास्ट्स. द स्कॉलरली पीपल वर कॉल्ड ब्राह्मण्स, द वॉरियर्स वर कॉल्ड क्षत्रियस, द ones who cleaned toilets and stuff were called shudras. Now because cleaning toilets and stuff was considered a bad job, which it is not of course, but उस वजह से उन्हें कोई छूता नहीं था, उन्हें अछूत कहा जाता था. ठीक है, उन्हें सोशली एक्सक्लूड किया जाता था, उनका मार्जिनलाइजेशन किया जाता था उनकी आइडेंटिटी से. उन्हें आसपास, जैसे हेम प्रकाश ने कहा, आसपास अगर वो छाया भी पड़ जाती थी तो उन्हें लोग घर जाके बात करते थे. आज के टाइम में भी इंडिया में इफ दे ड्रिंक फ्रॉम द सेम वेल, द वेल इज अबैंडन्ड और द पीपल आर किल्ड, द लोअर कास्ट. तो ये अनटचेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स है और ये अनटचेबिलिटी इन शॉर्ट है. अब बिकॉज इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं चाहते थे कि ऐसी पिछड़ी हुई कोई भी प्रथाएं चले, तो उन्होंने एक बाइंडिंग आर्टिकल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. ओके, दिस इज द ओनली एक्ट, अगर इसके तहत कोई कमेंट कोई है ना कंप्लेन कर दे तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा. ठीक है, नॉट अ सिविल ऑफेंस, नॉट एनीथिंग, इट विल बी डायरेक्टली अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, द इन्फोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ. ठीक है, ऑफेंस है और पनिशेबल है ये. ऑलराइट, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्ट, सॉरी सिंपल आर्टिकल. इसमें बस इतना ही कहा गया है कि अबॉलिशन और कि अनटचेबिलिटी जो है उसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा इंडिपेंडेंट इंडिया में. ठीक है, मैम इसी आर्टिकल में है क्या, अगर किसी एससी को अगर आप उसके कास्ट से बोल के उसको अगर उस कहीं पे बोल रहे हैं एक मास ऑफ पीपल के बीच में, तो वो एक्शन ले सकता है अंडर लॉ, इसी में वो स्टेटेड है क्या? आई सपोज सो. सर, कैन वी हैव अ कंफर्मेशन? एक सेकंड रुको. क्या क्वेश्चन है आपका? Am I audible? Guys, am I audible?
Guys, I hope I'm audible to you. Yes, ma'am. I am, right? Who asked this question? Okay. Did the person leave who asked this question? Ma'am, he was asking that if anyone says that you are SC, then he can do any criminal. He will be considered as criminal misappropriation in that case. Yeah, you can file a case कि इसने मुझे अछूत बोल के बुलाया और उस वजह से मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया एंड मुझे उस वजह से काफ़ी लॉस हुआ या मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला या जो भी है वो अब आर्टिकल 17 के अंदर आप बोल सकते हैं, एक केस फाइल हो सकता है उसमें. ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. Moving forward, Article 18, again Article 18 is also very simple. इसमें हम उसके सब clauses में नहीं जा रहे हैं because those are not very important from CLAT perspective. But normally अगर देखा जाए तो Article 18 talks about the abolition of titles. Now what exactly are titles? जैसे महात्मा गांधी, गांधी का नाम महात्मा नहीं था, गांधी का टाइटल महात्मा था जो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था. महात्मा यानी अ ग्रेट सोल. ओके, हाउएवर टू योर सरप्राइज महात्मा वाज नॉट हिज ऑफिशियल टाइटल. ठीक है, फादर ऑफ द नेशन इज नॉट गांधीज ऑफिशियल टाइटल. हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं father of the nation, but that is not his title. That is not recognized by the state. Why? Because under Article 18 हम एक हायरार्की को establish होने से रोकना चाह रहे थे. बिकॉज आप इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में उनके पास पूरी हायरार्की है. किंग, किंग के बाद प्रिंस, उसके बाद ड्यूक आते हैं, ड्यूक्स के बाद से अर्न, नाइट्स और ये सब चीज़ें आती है. उनका पूरी एक हायरार्की इस्टेब्लिश्ड है और फिर आते हैं कॉमन मासेस. हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का दर्जा भी लॉ के सामने उतना ही है जितना एक नॉर्मल इंसान आपका या मेरा है. ठीक है, तो हम एक हायरार्की को इस्टेब्लिश होने से रोकना चाह रहे थे. एंड सो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 18 वेयर नो टाइटल. इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट. यानी स्टेट किसी को भी कोई भी टाइटल कॉन्फर नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन यदि वो टाइटल मिलिट्री हो या एकेडमिक हो तो वो एक्सेप्शन है. जैसे तुम देखोगे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, आई होप यू हर्ड ऑफ हिम. उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है. Yes, Major ma'am, I've Sandeep, heard. या सो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उनके आगे मेजर लगता है. अब तुम बोलोगे यार मेजर भी तो एक टाइटल है मैम, क्या बात कर रहे हो आप? बट मेजर एक मिलिट्री टाइटल है, कर्नल एक मिलिट्री टाइटल है. फील्ड मार्शल सैम बहादुर, वी कॉल हिम दैट, वी डोंट कॉल हिम जस्ट सैम बहादुर, वी कॉल हिम फील्ड मार्शल सैम बहादुर. तो फील्ड मार्शल इज अ मिलिट्री टाइटल एंड दैट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 18. ठीक है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे डॉक्टर, एक होता है नॉर्मल जो डॉक्टर जो आपको ट्रीट करता है और एक होता है पीएचडी. पीएचडी जो भी करता है उसके आगे भी डॉक्टर टाइटल लगता है. तो ये जो टाइटल है ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, ये भी आपके लिए एक एक्सेप्शन है. ऑलराइट, ऑल्सो अब जैसे एक केस हुआ था, उसमें ना क्या होता है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि पद्मश्री है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे पद्मश्री मिला है, तो क्या मैं अपने नाम के आगे ये लगा सकती हूँ पद्मश्री अवॉर्डी सलमा आफरीन हुसैन? इज दिस एक्सेप्टेबल बाय लॉ? बिकॉज स्टेट इज कॉन्फरिंग पद्मश्री टू यू. आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या किसी और कंपनी से या किसी और कंट्री से वो लेके नहीं आए. स्टेट खुद आपको पद्मश्री दे रहा है, तो क्या पद्मश्री को हम अपने नाम के आगे यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इट एज अ टाइटल? तो इस पे ना सुप्रीम Yes. कोर्ट, नो, आप पद्मश्री को नहीं यूज कर सकते. स्टेट ने दिया है बट स्टेट ने आपको अवार्ड दिया है. इस पे कोर्ट कहता है कि आप एक टाइटल की तरह इसे नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये है ना, इस केस का नाम लिख दीजिए आप लोग. आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, जस्ट नोट दिस हियर. द केस वाज बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, ओ सॉरी, यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी,
बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट कहता है वेरी क्लियरली कि पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज टाइटल्स, ओके, in public documents specifically. you can use कर्नल और मेजर इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आधार कार्ड पे आपके कर्नल भले ही आ सकता है, लेकिन पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण या भारत रत्न ये सब आपके आधार कार्ड पे या किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आ सकते, बिकॉज दिस इज अ टाइटल एंड टाइटल्स हैव बीन अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 80। इतना समझा क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I Okay. have a question. Yes. मैम, अगर कोई अपने नेम के पहले डॉक्टर लिखते हैं, he has pursued PhD, तो इन एवरीवेयर, इन एवरी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर वो आगे फिल करते हैं तो वहां पे डॉक्टर एंड द नेम ब्ला 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 विल बी देयर। अगर वो करना चाहे ऐसा तो कर सकते हैं। दैट इज एन एक्सेप्शन अगेन, बिकॉज वो एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन है ना। यस मैम। वो अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में फिल करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो फाइन, थैंक रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। बट अगर सिमिलरली तुम कह रहे हो कि वो अपने नाम के आगे हर डॉक्यूमेंट में सर या मैडम फिल करना चाह रहे हैं, तो दैट इज नॉट दैट बिकम्स अ टाइटल, बिकॉज व्हाट आर यू रेफरिंग टू बाय अ सर? फाइन, माय आई गॉट इट, थैंक यू। यू अंडरस्टूड, राइट? यस मैम, यस मैम। ऑलराइट, शैल वी मूव फॉरवर्ड? यहाँ तक सबको समझ आया? Guys, have all of you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, great. Now, this is one of the most important articles in the Constitution. इस fundamental right की वजह से India is considered a democratic country. This is so very important. इसके हिसाब से this is Article 19. Article 19 talks about all the freedoms that you have. All the freedoms you have as a citizen, okay, and these are equal freedoms for all. अगर आज मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ और कोई मुझे चुप करा देता है, स्टेट मुझे चुप करा देता है कि नहीं तुम हमारे खिलाफ नहीं बोल सकती, डिस्पाइट मी बीइंग राइट, आई कैन टेल द स्टेट कि नहीं मैं आपके खिलाफ बोल सकती हूँ, आई हैव अ राइट एंड दैट इज माय फंडामेंटल राइट एंड दैट इज द फ्रीडम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। This freedom is provided to you under Article 19. All right, so we'll read the bare act of Article 19 and then we'll move forward, okay? So Article 19 talks about, this is the text of Article 19. Article 19 clause 1 और ये उसकी सब क्लॉजेज है, ठीक है, A, B, C, D, E, F और ये सब इसके सब क्लॉजेज है, ठीक है। All citizens shall have the right, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें all citizens है। Guys, just give me a moment, okay? Yeah, I'm so sorry. Anyways, Article 19(1), ठीक है, ये क्लॉज 1 है, ये इसके सब क्लॉजेस है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज बीन अ मिस्टेक, ये है हमारा G और F पहले था, बट अब आगे देखेंगे उसका क्या होता है, ठीक है। All citizens shall have the right. अब ये right is only reserved for citizens. ये कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई फॉरेनर है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो आके डिमांड नहीं कर सकता, वो हमारे देश में आके कुछ भी अनशन बोल के चला जाए एंड हम उस पर एक्शन नहीं ले, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही डज नॉट हैव फंडामेंटल राइट इन आवर कंट्री, ओनली आवर सिटीजन्स डू, ठीक है। हमारा सबसे पहला राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, एक बार तुम देख लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी हमें कुछ बोलने से, कुछ एक्सप्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। हम जैसे प्रोटेस्ट के लिए असेंबल होते हैं ना, जैसे आर्चिकार में जो रेप एंड मर्डर केस हुआ था, तो उसकी जस्टिस के लिए एंड टू आस्क फॉर जस्टिस फॉर दैट गर्ल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड असेंबल्ड,
वो उनका एक प्रोटेस्ट था, बट उसे कोई भी रोक नहीं सकता बिकॉज इट वाज अ लेजिटिमेट प्रोटेस्ट विदाउट एनी आर्म्स और एम्यूनिशंस। ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(b). फिर आर्टिकल 19(1)(c) कहता है कि वी हैव द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे अमूल है ना, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तब हम ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज स्टेट की तरफ से थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप आता है अमूल को, तो हम कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ही नहीं सकते। कोई भी सिटीजन कभी भी मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, एक एसोसिएशन बना सकता है, एक यूनियन बना सकता है। फिर आर्टिकल 19(1)(d) कहता है वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, से अगर आप यहाँ इंडिया से नेपाल जाते हो तो यू विल नीड अ पासपोर्ट, यू विल नीड अ वीजा। लेकिन अगर आप राजस्थान से हरियाणा जा रहे हो, यू विल नीड नथिंग। कोई आपसे आपका पासपोर्ट नहीं मांगेगा, कोई वीजा नहीं मांगेगा, बिकॉज इंडिया एक टेरिटरी है, एक लैंड है, और हम इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 19(1)(d). ओके, एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम किसी Ma'am, यस ma'am, what is the difference between associates and union? यूनियन देखो, यूनियन बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि है ना Seems he left.